सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एचआर के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। Hello friends, I am Abu Huzaifa and you are watching HRK Studio. We have one guest, one scholar from Jawaharlal Nehru University, and we will talk about the sociology subject, how to prepare for the JNU MA and MPhil entrance in sociology. Hello friends, this is Neeraj Kumar. So I am doing PhD in Center for the Study of Social Systems, which is Department of Sociology, you can say. But in JNU we don't have departments, so we usually have centers. So many people, they are confused about this thing. They are like when the prospectus was out, so they were confused that they were not finding sociology, Department of Sociology. So if you are also confused by this, that you are not finding Department of Sociology or you are not finding the syllabus of Department of Sociology, so please don't search this through Department of Sociology, search it through Center for the Study of Social Systems. So as I told you, I am Neeraj, I am doing my PhD, and today I'll guide you to how to prepare for the entrance examination for MA as well as for MPhil. डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बार जो JNU में जो है सब्जेक्टिव जो पहले जो हुआ करता था, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन used to be there and you had to write in 3 hours. There used to be 5 questions and you had to write, and question paper used to be of 70 marks, but this time it is like objective type questions, multiple choice questions. So you all know, so no one knows what type of questions will be there because we don't have any idea what will be the pattern. So we can just only guess from the kind of things or kinds of topic which are given in the syllabus. So again I'm going to tell you what to study, from where to study and how to study for MPhil, because MPhil question paper will be qualitatively or you can say quantitatively differ from MA question paper, because MA the level will be till graduation, but when it comes to MPhil, so because they expect you that whatever you have studied in masters, like the advanced thinker, so such questions will be asked from you in MPhil course. So again, if we look at the syllabus of MPhil Sociology or Center for the Study of Social System, again it can be divided into 4 or 5 categories. So first obviously is thinkers, because JNU it is known for its theorization. The people who study in JNU, their theoretical part is very strong. So theory part, unlike MA syllabus, they have divided it into 2 categories. First is classical thinkers and second is advanced thinkers. So classical thinkers, similarly like in MA, they have Marx, Weber, Durkheim. They did not ask anyone else, just you have to focus on 3 thinkers: Marx, Durkheim and Weber. And again, from where will you study these thinkers, 3 thinkers? Same, either you just focus on George Ridger's sociological theory or IGNOU notes. The code is, again I am telling you, ESO 13. So this is for classical thinker. You can study these from either from IGNOU notes or from George Ridger's sociological theory. Second is advanced thinker. Now in advanced thinker, they did not name anything, but just they name the various kinds of schools that are there, just like postmodern theories or post-colonial theories or post-structuralist theories. So now what you need to study here. So now here all your advanced thinkers will come. Giddens will come, Derrida will come, Foucault will come, all these people will come, George Ridger will come, Habermas will come, all these people will come. And now where to study these? So again just stick to George Ridger, because this will be your Bible for theories, because all the theories he has got from classical to advanced, all the theories are there. And if you want to read these thinkers from IGNOU notes, then the code for the block is MSO 001. So this is the code for IGNOU notes, MSO 001. We will try to upload this somewhere and then we'll give the link in the description. So this is where the thinkers part ends. So in classical, Marx, Weber, Durkheim. So if you have done your graduation in sociology or your masters in sociology, then it is not going to be a big deal for you. But if you are from some other discipline, then I'll suggest you to go to IGNOU notes rather than going to Ridger. If you have sociology background, then you can study them from Ridger, because then you will understand them more fully. Or if you know some other books, just like there is another book by Turner, but I won't suggest you, but like because it's kind of difficult to understand.
but book is very good, but I won't suggest you to go there because the language is tough there. So just stick to George Ridger or IGNOU notes. So second thing which you will find here, this is quite interesting because they say that it is a paper of sociology, but this particular block, it is from anthropology. So they call it study of monographs. So in it they have asked 5 thinkers, and these 5 are anthropologists. So you can also call them social anthropologists. So ये कौन है? Evans Pritchard, Malinowski, Edmund Leach, Margaret Mead and Clifford Geertz. Now there is going to be a problem, because if you are going to look them in George Ridger, you are not going to find them, or if you will find them, you will find very small 3-4 lines, very small portion, not like the kind of study of monographs, what they do when they went into the field, what they do, just like Evans Pritchard. So he has written this book, The New Year's, I guess. So when he went to the tribal area, how did he conducted that study, what are the things which he found there, and how did he wrote them. So all those things are there contained in those monographs. So when we talk about monograph actually is a study of a single aspect. It's not that you are going to a society and you are going to study each and everything. That is not a monograph. When we study monograph, it is like a study of a particular aspect in a particular society. So इसके लिए अब कहाँ से पढ़ें, बात ये आती है. So I was searching it for the other day and I found this particular blog from IGNOU, and the name of the blog is Comparative Ethnography, and its code is MANE003, and name of the particular block is block 6, Economic and Political Organization. So this block, it is going to cover everything for you. It will cover Evans Pritchard, Malinowski, Edmund Leach, Margaret Mead and Clifford Geertz. If you don't find any of these thinkers in there, so for Clifford Geertz, there is another unit 13 which is called cultural analysis, because Clifford Geertz, he did the study of culture. How did he study culture in the various in the tribal societies. So you will find it in IGNOU notes. Again, the link will be given in the description. And there are 2 other books, Anthropological Theories 1 and 2. Again, they are both of IGNOU. So the code is MAN001, block 3 and 4. Again, the link will be there in the description. So these are the things from where if you will study them, and they are very lucidly written, in one reading you will understand everything. What are they talking about, what did they find in the particular societies where they went. So it is going to really help you a lot. Now we come to the next section, which is of research methodology. And friends, here you have to give a lot of attention, because you are going to appear for MPhil examination. MPhil, which is like a research degree, so you must know about what is there, what is research, how to do research, and what are the various types of research. And if you will look into the syllabus of JNU, then there are particular sections which they have given. First thing which they have given is philosophical foundation. What are the philosophical foundations of research or social research? Second thing which they have asked is qualitative and quantitative. So if you will look into the books of research methodology, you will find various techniques: qualitative research, quantitative research, some are descriptive research, some are like applied research, some are pure research, some are practical, theoretical research. So various types of research are there, but they have asked particularly qualitative versus quantitative. And third is positivism, and fourth is interpretivism. So these are all branches of methodology, because when we talk about thinkers like Auguste Comte or Emile Durkheim, so they were positivist. So what is the positivism? What are the things which they are talking about? So all those things you will find in positivism. And then there came a school, because positivists, they say that we just like science, in natural science, it studies various objects. Just like suppose this is a glass. So if a natural scientist will study this glass, so he will say that okay, this is plastic, it has these molecules, it has that molecules, and these things will be everywhere same. Like if it is plastic, so everywhere in the plastic you will find the same things. So positivists, they were saying that if we employ the methods of natural science in social world, then we can also conduct a study like natural sciences of the social world. So
earlier sociology, it was dominated by positivism, and to be more specific, the French sociology, which was dominated by Emile Durkheim or Auguste Comte, they were positivist, all positivists. So they were influenced by this school. But then came thinkers like Max Weber, and they said, no, you can't employ the methods of natural sciences in social sciences, because social science, the subject matter is human being. Human beings have emotions, they have their own feelings. So how can you, and every different human beings have different emotions, different feelings. So you cannot use one single method which you are using for natural sciences to use it on human body or for the social sciences. So we need a different approach, and this approach was known as interpretivism, to which he says interpretative understanding of social action, by which he means that we have to understand the action by the perspective of the actor. If our friend is doing something, so I cannot just imagine that he is doing something like that. I have to just understand from his perspective. If he is eating mango, so if he is eating mango, so I cannot say he is eating mango because he like yellow color. He must be eating mango because he likes its taste. So this is the thing which we have to understand from the perspective of the actor. कर्ता जिस उद्देश्य से क्रिया कर रहा है, हमें उस उद्देश्य को समझना होगा, ये होता है इंटरप्रेटिविज्म. अब नाउ ये चीज़ें आप पढ़ेंगे कहाँ से? तो इसके लिए इग्नू के नोट्स अगेन MSO 002 ये कोड है. तो इसमें आपको रिसर्च मैथडोलॉजी और वेरियस मेथड से लेके सब कुछ आपको मिल जाएगा. एंड इट इज़ अगेन वेरी लूसिडली रिटन, वेरी सिंपली रिटन, यू विल अंडरस्टैंड इट इन वन गो. Now comes another section which is again like basic concepts, and in basic concepts they are not asking for marriage, family, no, not marriage, family, kinship. They will ask because they are social institution. They are not asking for concepts like society, community, but they are asking for, they have given this particular thing, social stratification, which was there in the MS syllabus as well. They are also, they are given, and in it they will ask again gender, caste, tribe, ethnicity and disability. So all these things again you are going to find in MSO 004, that is society in India. So how caste operates, how gender works, how tribes work, what is ethnicity, how it works, what is disability, and what are the various theories regarding this. All these things you are going to find in this particular unit, MSO 004, sociology in India. So whatever related to India, everything you will find in this unit. And then they are asking marriage, family, kinship. So again, marriage, family, kinship, all these are parts of Indian society. You can all find them in Indian society. In marriage particularly, they will ask, because obviously you must have conceptual clarification ki what is marriage, what is family, what is kinship, and then what are the different types of marriage, what are the different types of family, what are the different types of kinship. Then there are some theories of marriage, there are some theories of family, there are some theories of kinship. Like this guy, this thinker Murdoch, so he has given different types of kinship terminologies. You must have understanding about those kinship terminology. What are the various types of kinship usages, just like COVID, anonymity, technonymity, all these things you must memorize, because these are going to be there in the question paper for sure. And then we comes to social inequalities and social movements. Again, all these things are there in the particular section sociology in India, MSO 004. One particular section is there, education and society. They just gave education and society, how education works in a society. So they did not give what to study in it. So from my experience, I can tell you, most probably they will ask for some theories. What are the various theories of education in society? So these theories you are going to find in IGNOU notes, that is MSO E001, and the name of the block is Sociology of Education. Similarly, there is another section, religion and society, how religion operates in society, what are the various types of religion which are there in the society, what are the basic tenets of those religions in Indian society. So for this again there is particular section, Sociology of Religion, and the code name for that is MSO E003. So all those notes will be provided in the description. And then we have another section which deals with economy and society, modernization, globalization, development,
अब ये सारी चीज़ें कहाँ से पढ़ी, लग रहा है कि बहुत वास्ट है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, यू हैव टू डू स्पेसिफिक रीडिंग्स. इफ यू विल डू स्पेसिफिक रीडिंग देन इट्स नॉट अ बिग टास्क. तो इसके लिए आपको जो सेक्शन पढ़ना है, इग्नू के नोट्स पढ़ने, आई एम नॉट गोइंग टू send you anywhere else ki read that book, read this book, because it is going to take lots of time, and if it will take lots of time then you are not going to finish it. So just stay with IGNOU notes. Code number is MSO003. This particular code deals with sociology of development. So whatever is related to development, what is globalization, what is capitalism, what are the various types of theories regarding development, what are the various types of theories regarding social change, cyclic theory, linear theory, evolutionary theory, dependency theory, world system theory, all these theories are going to be there in this particular unit. So just go into those specific sections and read from there and everything will be all right. And then comes urban sociology. They have given this particular term, urban sociology, and they have also given one term, industrial sociology and corporate sociology. So industrialization and corporatization, all these parts of the urban society, because in the urban society we have this large scale industrialization and then corporate houses are coming. So all this part of the urban sociology, and for this there is a specific unit of urban sociology, that is MSOE004, and this unit deals with, or this block deals with urban sociology. So whatever is there in urban sociology, just like class is there, or how in the urban society families are changing, or how urban society is changing marriage, or how relationships are changing in the urban society, or how industrialization is changing the society. All these things which are part of the urban society are there in this particular block, urban sociology, MSOE004. And then comes Indian society, our last section. In Indian society they have given society in India and social issues. So all these things, because it's an Indian society, so this will be covered by this particular section, MSO004. These are IGNOU notes, and this IGNOU notes, sociology in India, MSO004, it will also cover rural sociology, आपका agrarian sociology है वो भी, आपका migration, industrialization, globalization, social movement, new social movement, all these aspects will be covered by this. So now this is what is given there in the syllabus, and I told you from where to read, and I'll also ask a brother to just upload the link somewhere, or I'll help him to upload these notes somewhere, and they'll put the link in the description. But again, you have to keep this fact in mind that you don't have lots of time and you have to do specific reading. So what to read, just you must know the name of the thinkers, the important thinkers which are given, and then which concepts they have given, and third, which books they have written. So these are the three most important things which you have to remember. And beside this, obviously you must have conceptual clarification, because if you have conceptual clarification, then you can do everything. So with all these things, I wish you all the best for your exams, and again I hope that you get what you are desiring. Thank you. Thank you so much. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा डिटेल में जो भी चीज़ें थी यहाँ पे पूरी तरह से बुक रेफरेंस कहाँ से लेना है वो सारी चीज़ें इन्होंने बता दी आपको, बुक कौन सी पढ़नी है और किस तरह से पढ़ना है, मटेरियल का कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें भी इन्होंने बता दी। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे थोड़ा साइड करना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम जो NTA करवा रहा है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, बहुत सारे हो सकता है कंप्यूटर उन्होंने या तो यूज़ नहीं किया होगा या उसका, तो वो टेक्निक आप जाके NTA की साइट पे देख लीजिएगा, कुछ मिनट का वीडियो है, वो सारी प्रोसीजर है किस तरह से यूज़ करना, किस तरह से हैंडल करना, वो सारी चीज़ें, ताकि आप जब इम्तहान में जाए, एग्ज़ाम में जाए तो आपकी टाइमिंग सेव हो और अचानक से जब आपके सामने आ जाए तो आपको टेंशन ना हो। उसके लिए मैं वो सजेस्ट करूंगा। अगर आप वहाँ नहीं पूछ पा रहे, मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा, जेन्यू ने वो डिटेल निकाला है, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। एक चीज़ और जो मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ में आप अगर बताना चाहें कि जो लोग MPhil के लिए आ रहे हैं, दो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MPhil, दे हैव कम विद द सिनॉप्सिस, सो आई वांट टू नो समथिंग अबाउट दिस सिनॉप्सिस, व्हाट टाइप ऑफ सिनॉप्सिस एंड हाउ they can. देखिए सिनॉप्सिस वाला जो है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन हो जाता है, पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो रूरल एरियाज़ में पढ़ रहे हैं या जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ का थोड़ा
एकेडमिक माहौल ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है एमए कर जाता है, लेकिन उसके बाद भी उनको ये नहीं पता होता कि सिनॉप्सिस बनाई कैसे, क्योंकि उस तरह का एकेडमिक माहौल है नहीं जिसमें उनको सिखाया जाए कि सिनॉप्सिस ऐसे बनाई जानी चाहिए, ये स्टेप्स हैं, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस मामले में थोड़ा अपर एज होता है, क्योंकि थोड़ा एकेडमिक इन्वायरमेंट ऐसे होता है, जैसे जो स्टूडेंट डीयू से आ रहे हैं एमए करके, तो उनको ऑलरेडी पता होता है, या ऑलरेडी जो स्टूडेंट जेएनयू में है तो उनको पता होता है कि किस तरह से। सो अच्छा किया आपने ये क्वेश्चन पूछा। सो मैं आपको ब्रीफली आपको बताऊंगा कि सिनॉप्सिस कैसे बनाई जाए। तो सबसे पहले तो यूजुअली ये होता है, पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई सिनॉप्सिस बनानी है तो कोई टॉपिक होना चाहिए, किस टॉपिक पर बनाएं। सो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि किस टॉपिक पे। अब टॉपिक का सिलेक्शन कैसे किया जाए, तो यदि आप रियल में रिसर्च करेंगे तो टॉपिक का सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। तो उसका टॉपिक का सिलेक्शन कैसे होता है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपने किसी पर्टिकुलर इशू पे पढ़ रहे हैं, उस इशू पे पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में कुछ आया कि ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये सोसाइटी में हो रही हैं, लेकिन ये क्यों हो रही हैं इसका हमें पता नहीं है, तो इस मुद्दे पे रिसर्च करने की ज़रूरत है। या तो आपने कहीं पे पढ़ा, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा या किसी किताब में पढ़ा, ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो मैं इस पे रिसर्च करना चाहता हूँ। या फिर आप अपनी सोसाइटी में ही आसपास देखते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें सोसाइटी में हो रही हैं। जैसे आजकल डिफरेंट टाइप्स की मैरिजेस आ गई हैं, बिकॉज हाई कोर्ट ने भी जो सेम सेक्स रिलेशनशिप है उसको परमिशन दे दी है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। या ग्लोबलाइजेशन के बाद में जो चेंजेस आ रहे हैं कि नए नए फूड कल्चर आ गया है इंडिया में, इस तरह के फूड आ गए हैं जो पहले कभी हुआ नहीं करते थे। तो उन फूड्स के आने के बाद में क्या चेंजेस आए सोसाइटी में, या और दूसरे चेंजेस आ रहे हैं, अलग अलग तरह के पहनावे आ गए हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें आ गई है। तो उन सब के आने के बाद सोसाइटी में क्या चीज़ें, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास घटित हो रही हैं। तो उन सब के आने से क्या चेंजेस आए, तो इस तरह से आपको टॉपिक का सिलेक्शन करना होगा। या आप अपने घर के आसपास में कोई और दिक्कत देखते हैं कि महिलाओं से रिलेटेड कोई समस्या है, बड़े बुजुर्गों से रिलेटेड कोई समस्या है, बच्चों से रिलेटेड कोई समस्या है, या जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, चाइल्ड लेबर है, इस तरह की समस्याएं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते हैं, तो आप किसी भी एक इशू को उठा लीजिए। अब उठाने के बाद में अब ये होता है कि पहला स्टेप तो हो गया सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम है उसके बाद में अब क्या सेकंड स्टेप होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। क्योंकि जब तक आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या वो जिस समस्या पे आप रिसर्च करना चाहते हैं उस पर रिसर्च हुई भी या नहीं। पता चला कि आप उस पर रिसर्च करना चाहते हैं लेकिन उस पर ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, तो फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं है उस पर आप समय लगा के। सो जिस भी इश्यू पे आप रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल अवेलेबल है या जितने भी रिसर्च हुई है, आपको एटलीस्ट जो मेन रिसर्च है उसका आपको रिव्यू करना होगा। अब बात ये आती है कि अब जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो उसमें क्या देखें, तो उसमें 3-4 बातें होती है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। पहली बात तो ये होती है कि रिसर्च जो है किसने की है, ऑथर कौन है, फिर उसने रिसर्च कहाँ की है, कौन सी जगह पे वो रिसर्च हुई है। तीसरी कब किया, वो हो सकता है किसी ने आज़ादी से पहले रिसर्च की हुई हो, तो आज़ादी से पहले और अब में तो बहुत चेंज आ गया है, तो वो आउटडेटेड हो गई है, तो वो रिसर्च कब की है। चौथा, उसने कैसे की है वो रिसर्च। जब मैं कह रहा हूँ कि कैसे की है तो वहाँ पे आपको देखना होगा उसने सैम्पल साइज़ कितना लिया, उसने इंटरव्यू लिया है या क्वेश्चनेयर से डाटा फिल करवाया या इंटरव्यू शेड्यूल लिया है या एथनोग्राफी की है, कौन सी टेक्निक है जिससे उसने डाटा कलेक्शन किया। और फिर पांचवी चीज़ जो आती है कि उसकी फाइंडिंग्स क्या रही। तो जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लेते हैं तो ये 5 चीज़ देखनी होती है कि रिसर्च किसने की है, कहाँ की है, कब की है, कैसे की है और क्या फाइंडिंग्स रही हैं उसकी। सो जब इस तरह से आप जो भी लिटरेचर अवेलेबल है जब उसकी आप स्टडी कर लेते हैं तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पे गैप है, कि गैप कहाँ है, कि इतनी सारी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी हैं लेकिन ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट इसको किसी ने छेड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पे ये गैप है। वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बन जाती है कि हालांकि सो मैनी वर्क हैज़ बीन डन बट नो वन हैज़ टच्ड दिस एस्पेक्ट और वेरी लिमिटेड रिसर्च हैज़ बीन डन ऑन दिस एस्पेक्ट, सो आई वांट टू डू अ रिसर्च ऑन दैट। अब जैसे ही आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा वहाँ से आपकी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम निकल के आएगी। अब स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आने के बाद में रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ही आपके ऑब्जेक्टिव निकल के आएंगे कि आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया, अब आप क्या करना चाहते हैं। ऑलरेडी ये रिसर्च हो रखी है लेकिन आप क्या करना चाहते हैं नया। तो जो गैप है कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मत रखिए। अब आपके ऑब्जेक्टिव बना लिए
कि आई वांट टू फाइंड आउट द ट्रेंड ऑफ दिस। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद में आते हैं आपके रिसर्च क्वेश्चंस। अब रिसर्च क्वेश्चन क्या होते हैं, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कुछ लोग रिसर्च क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव को बाद में लिखते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है वो रिसर्च क्वेश्चन ही लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव यूज़ ही नहीं करते। सो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ गलत है या ये चीज़ ठीक है, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ ट्रेनिंग विच यू आर गेटिंग। कुछ लोगों की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि उनको पहले ऑब्जेक्टिव बताया जाता है और फिर उनको रिसर्च क्वेश्चन, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच इसी तरह की रही है। आजकल जो नया ट्रेंड जो आया उसमें ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव को भूल जाओ, आप केवल क्वेश्चन रखोगे। आपके सोसाइटी में आप जा रहे हो, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए रिसर्च कर रहे हो, तो ये भी ऑब्जेक्ट ठीक है। बट मेरी ट्रेनिंग जो इस तरह से हुई है कि पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं, उसके बाद फिर रिसर्च क्वेश्चन। अब रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा, आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाया, सपोज करो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया कि टू फाइंड आउट द चेंजेस कमिंग इन द कंजम्पशन पैटर्न इन इंडियन सोसाइटी। अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप कौन से क्वेश्चन पूछोगे, कि आपने ऑब्जेक्टिव तो कर लिया, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपको डेटा कैसे इकट्ठा करोगे आप रिस्पोंडेंट से, तो उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो आप पूछेंगे जैसे कि अब सपोज कि रिसर्च क्वेश्चन बना दिया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स दैट आर अवेलेबल इन इंडियन सोसाइटी, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। फ्रॉम वेयर दीज फूड्स आर कमिंग, what are the prices of this food, and how many times do you eat this particular type of food। so इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे कि ये क्वेश्चन है जिनका आप आंसर देना चाहते हैं, और जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो इस क्वेश्चन को पूछने से आपका ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। सो इसको कहते हैं रिसर्च क्वेश्चंस। अब आपका हो गया कि ठीक है, आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया, आपकी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आ गई, आपके ऑब्जेक्टिव बन गए, आपका रिसर्च क्वेश्चन बन गया। अब आता है कि आप रिसर्च कहाँ करेंगे, उस चीज़ को बोला जाता है यूनिवर्स ऑफ द स्टडी, कि आपका जो यूनिवर्स वो कहाँ पे, स्टडी कहाँ पे। अब वो स्टडी आप कहाँ कर रहे हो। अब जैसे आपने कह दिया भाई मैं तो स्टडी अपने गांव में कर रहा हूँ, तो आप अपने गांव में स्टडी कर रहे हो, गांव का नाम है ABC, तो आप ABC गांव में स्टडी कर रहे हो, लेकिन ABC में क्यों कर रहे हो, आपके पास उसका एक रेशनल होना चाहिए कि ये बात है, इसलिए आप सिंपली ये नहीं कह सकते मेरे घर के नज़दीक इसलिए मैं कर रहा हूँ, वो बायस्ड हो जाएगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए, आपके पास एक सिस्टमेटिक रेशनल तर्क संगत उत्तर होना चाहिए उसका, कि मैं ये स्टडी यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ। सपोज करो कि समवन सेज कि मैं आई वांट टू स्टडी ऑन डोमेस्टिक वायलेंस इन दिल्ली। सो पूछे कि दिल्ली में क्यों करना चाहते हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं दिल्ली में रहता हूँ इसलिए दिल्ली में करना चाहता हूँ। तो अभी कुछ टाइम पहले मुझे याद है मैं कोई यूनिसेफ की कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें दिया हुआ था कि डोमेस्टिक वायलेंस के सबसे ज़्यादा केसेस दिल्ली में होते हैं। सो ये जो है, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ये रेशनल आंसर होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस, बिकॉज दिल्ली हैज़ रजिस्टर्ड मोस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, दैट्स व्हाई आई वांट टू डू इट इन दिल्ली। सो इस तरह का आपका कोई रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो यहाँ से आपका हो जाता है यूनिवर्स। अब ये है कि आप पूरी की पूरी दिल्ली में नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दिल्ली बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी दिल्ली में आप रिसर्च नहीं कर सकते। या दिल्ली को छोड़िए, आप किसी स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कोई भी स्टेट है, उसमें पूरी स्टेट को नहीं कवर कर सकते आप, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है। तो उस लिमिटेड टाइम के अंदर आपको रिसर्च करनी होगी, आप पूरी ज़िंदगी नहीं लगा सकते। आपके पास यदि MPhil कर रहे हैं तो 2 साल होंगे, PhD कर रहे हैं तो 4 साल, तो 4 साल के अंदर आपको पूरी करनी होगी। यदि आप पूरी दिल्ली ले लोगे तो वो आपको लगेगा 20 साल में भी कंप्लीट नहीं होगी, तो आपको उसको नैरो करना होगा। अब दिल्ली में कहाँ पे, वहाँ से आपको एक स्पेसिफिक एरिया लेना होगा, उसको छोटा करना पड़ेगा। जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया, जैसे दिल्ली में सपोज करो छतरपुर ले लिया, तो अगेन आपको उसका रेशनल देना होगा कि छतरपुर ही क्यों, कोई दूसरा एरिया क्यों नहीं। तो इसी तरह से आपको उसका रेशनल देखना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाता है आपका यूनिवर्स। यूनिवर्स आने के बाद दूसरा होता है सैम्पल साइज, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग, कि ठीक है आपने यूनिवर्स अपना एरिया को नैरो डाउन कर दिया, अब इसमें आप कितने लोगों की स्टडी करेंगे। सपोज करें कि जैसे मैं कहता हूँ मैं स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स है, इसकी स्टडी कर रहा हूँ, तो आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में होंगे कोई 300, हो सकता है 300 स्टूडेंट हो, तो मैं सारे 300 के 300 स्टूडेंट की स्टडी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा उसमें, तो मुझे उसको और नैरो करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर नंबर लेना होगा। अब यहाँ पे अब वो नंबर कितना होना चाहिए, अब ये डिपेंड करता है आपकी स्टडी क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। यदि आप स्टडी कर रहे हैं क्वांटिटेटिव, तो उसका अपना फॉर्मूला होता है कि जितनी पॉपुलेशन है उसका 10% ले लिया रैंडमली, सो वहाँ से आपका क्वांटिटेटिव आ जाएगा। यदि क्वालिटेटिव है तो क्वालिटेटिव में आप कोई भी नंबर ऐसा ले सकते हैं
जिससे आपको लगता है कि इतना नंबर लेने के बाद मेरा डेटा सैचुरेटेड हो गया है, बार बार वही रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, कुछ नया नहीं आ रहा। अब इस तरह के रिस्पॉन्सेज हो सकता है आपके 10 इंटरव्यू में आ जाएं, हो सकता है आपके 20 में आ जाएं, हो सकता है आपके 30 में आ जाएं। तो जहाँ आपको लगता है कि आपका डेटा सैचुरेटेड हो गया वहाँ बंद कर दो। इसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि आपका टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है, ये आपको डेटा कलेक्शन कैसे कर रहे हैं। तो यदि आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक है तो क्वांटिटेटिव टेक्निक में यूजुअली हम जो क्वेश्चनेयर से डेटा सेलेक्ट करते हैं या इंटरव्यू शेड्यूल होती है उससे। अब क्वेश्चनेयर का यूज़ कहाँ करते हैं? क्वेश्चनेयर का यूज़ एक्चुअली उन एरियाज़ में किया जाता है जहाँ रिसर्चर खुद नहीं जा सकता, जैसे फार फ्लंग एरियाज, दूर है, तो क्वेश्चनेयर को यूजुअली डाक द्वारा भेजा जाता था। आजकल ईमेल चल गए हैं तो ईमेल में अटैच करके लोग भेज देते हैं कि प्लीज़ गूगल फॉर्म्स आ गए हैं, गूगल फॉर्म्स में लगा के भेज देते हैं कि आप ये रिस्पॉन्स दीजिए, वो ऐड हो जाते हैं, उसके बाद में एनालिसिस कर लेते हैं। इंटरव्यू शेड्यूल क्या होती है? रिसर्चर वो एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनको लेके जाता है रिस्पोंडेंट के पास में, वो क्वेश्चन पूछता है, रिस्पोंडेंट आंसर देता है, रिसर्चर उसको नोट करता है। और क्वांटिटेटिव में यूजुअली जो है उत्तर जो है क्लोज एंडेड होते हैं। शेड्यूल जो है 2 प्रकार की होती है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है, जो अब रिस्पोंडेंट बोलेगा आपको लिखना पड़ेगा, वो कुछ भी बोल सकता है। क्लोज एंडेड में आप हाँ ना, यस नो, इस तरह के आंसर होते हैं, टिक मार्क वाले, कि 1 पे टिक लगा दिया, 2 पे टिक लगा दी, इस तरह के आंसर होते हैं इंटरव्यू शेड्यूल के अंदर में। सो यूजुअली ये जो 2 टेक्निक है ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज़ की जाती हैं। और जब क्वालिटेटिव डेटा की बात आती है तो यूजुअली हम यूज़ करते हैं इंटरव्यू, जैसे कि हम लोग आपस में बैठ के बात करते हैं, वो इन डेप्थ डिटेल्स निकल के आती हैं उससे। तो अब इंटरव्यू इसमें मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। उसमें स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, आपके पास एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और आप हर रिस्पोंडेंट से वही सेम क्वेश्चंस पूछते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड। एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड, उसमें क्या होता है, आपके पास उसमें भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किए, आपने कुछ आंसर दिया, तो कई बार क्या होता है आपका जो आंसर दे रहे हो उसमें से मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, तो वो सेमी स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। और एक होती है अनस्ट्रक्चर्ड, तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अनस्ट्रक्चर करें। उसमें क्या होता है, आप बिना किसी क्वेश्चन के जाते हैं, सिंपली जाके बात शुरू कर देते हैं, तो वो बेनिफिशियल ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि क्या होता है आप बिना क्वेश्चन के चले गए और वहाँ जाके पता चला 2 क्वेश्चन के बाद आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, तो आप खाली हो गए बिल्कुल। सो अच्छा रहता है कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ एटलीस्ट मिनिमम सम क्वेश्चन तो हों जिनको आप लेना चाहते हैं। सो ये होता है इंटरव्यू के थ्रू, या आप कर सकते हैं केस स्टडी। अब केस स्टडी में क्या होता है, केस स्टडी ज़्यादा नहीं की जाती, केस स्टडी 4, 5, 6, 10 मैक्सिमम। इसमें आपको बहुत ही इन डेप्थ आप कोई पर्टिकुलर केस उठाते हैं, जस्ट लाइक हम लेते हैं केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ले लेते हैं। तो आप किसी महिला से बात कर रहे हैं या किसी बच्चे से बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस से जो पीड़ित है, आप उसके साथ बार बार बहुत ज़्यादा समय बिताना पड़ता है उसके साथ में, जस्ट लाइक बार बार उसी के पास आ रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं आप उसके साथ। कई बार क्या होता है आप गए, उसका मूड अच्छा नहीं है, तो ऐसे में आप उसको फोर्स नहीं कर सकते बोलने के लिए, तो आप वापस आ गए, दोबारा फिर गए, फिर उसने थोड़ा सा बताया, फिर तीसरी बार फिर गए, फिर थोड़ा ज़्यादा बताया। इस तरह से ओपन होने में टाइम लगता है। तो इस तरह की केस स्टडीज़ होते हैं, उनमें टाइम लगता है, वो इन डेप्थ स्टडीज़ हो जाती हैं। एक और डिटेल है जो क्वालिटेटिव स्टडीज़ की, तो उसको बोला जाता है एथनोग्राफी। उसमें एथनोग्राफी में क्या होता है कि आप जो रिस्पोंडेंट होते हैं उन्हीं के साथ जाके रहते हैं। तो एथनोग्राफी यूजुअली उन स्टडीज़ की जाती हैं जो आपकी सोसाइटी की नहीं है, उन सोसाइटीज़ की। जैसे सपोज कीजिए मुझे गाड़िया लोहार होते हैं जो, उनकी स्टडी करनी है, तो मुझे नहीं पता उनका कल्चर कैसा है, ना ही उनके बारे में कुछ लिखा गया है, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे उनकी स्टडी करें, तो है आप उनके साथ जाके रहो, उनके साथ जाके रह के देखो कि उनका कल्चर किस तरह का है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह का पहनावा है उनका, किस तरह का कल्चर है, बोलिए किस तरह की है उनकी, सोशल इंस्टीट्यूशंस किस तरह के हैं, मैरिज कैसे होती है उनमें, किनशिप रिलेशन कैसे हैं। ये चीज़ें आपको ऐसे नहीं पता चलेगी, ये चीज़ें जब आप उनके साथ जाके रहोगे महीनों तक, तब जाके टाइम स्पेंड करोगे, तब जाके। एथनोग्राफी में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है आउटसाइडर की। इस चीज़ को हम इसको एथनोग्राफी, इसमें ऑब्जर्वेशन भी बोला जाता है। उस पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जब आप उनके साथ जाके रहते हैं, वो जो काम कर रहे हैं आप भी वही काम कर रहे हैं, तब उनके साथ जाके रह के जो चीज़ें आप गेन कर रहे हैं वो पार्टिसिपेंट। नॉन पार्टिसिपेंट में क्या होता है कि कोई सपोज कीजिए कोई शादी हो रही है, आप दूर से खड़े होकर बस देख रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो नॉन पार्टिसिपेंट हो जाता है। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, ये क्वालिटेटिव रिसर्च की टेक्निक्स होती हैं। सो हमारा सैम्पलिंग साइज आ गया, हमारा टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन आ गया। सो मेनली ये होता है। फिर उसके बाद आता है रेफरेंसिंग।
ये रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली जेएनयू में, क्योंकि जब आप रिसर्च प्रपोजल लेके आएंगे वो लोग देखेंगे कि आपने कौन कौन से रेफरेंसेस यूज़ किए हैं। सो आई सजेस्ट कि विकीपीडिया जैसे जो वेबसाइट्स हैं उनका यूज़ बिल्कुल ना करें। उसमें जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं उन्हीं को रेफरेंस के तौर पे यूज़ करें, या JSTOR एक वेबसाइट है, वहाँ पे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, या कोई अच्छी बुक्स हैं वो जो अवेलेबल हैं, आप उनको रेफरेंसिंग स्टाइल के तौर पे यूज़ करें। अब रेफरेंसिंग के तौर पे यूज़ करें। अब रेफरेंसिंग स्टाइल होती है, अब उसमें APA होती है, MLA होती है, शिकागो स्टाइल होती है, ये आप नेट पे देख सकते हैं। उनके डिफरेंट तरीका होता है। किसी में ऐसे लिखा जाता है, जैसे TK उमन लिखना है तो उमन कोमा TK, देन ईयर आता है, देन बुक का नाम होता है, देन पब्लिशिंग क्या होता है, कौन सी पब्लिशिंग हाउस है, इस तरह से आते हैं। ऐसी तरह से दूसरी जो स्टाइल्स हैं उनका अपना अलग पैटर्न है। तो ये सारी चीज़ें आप नेट पे एक बार सर्च कर सकते हैं। आप कोई भी एक स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको शिकागो यूज़ करनी है, MLA करनी है, APA यूज़ करनी है, कोई भी आप स्टाइल यूज़ करते हैं, लेकिन जो स्टाइल आप यूज़ करें उसको पर्टिकुलरली फॉलो करो हर जगह। ऐसा नहीं है कि एक जगह APA कर दिया, एक जगह शिकागो कर दिया, एक जगह MLA कर दिया, ऐसा नहीं। जो स्टाइल यदि शिकागो यूज़ करें तो पूरा शिकागो यूज़ किए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं रिसर्च प्रपोजल के। और अगेन आई विल से कि जो भी आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं उसको सिंपल रखें, कॉम्प्लेक्स मत बनाएं, क्योंकि यदि कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आप इंटरव्यू में फंस जाएंगे कहीं पे। तो जितना आपको समझ में आ रहा है, जितना सिंपल रखा जा सकता है उतना रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि आपका रिसर्च प्रपोजल सिंपल है तो वो लेंगे नहीं। इस स्टेज के ऊपर उनको वो केवल ये जानना चाहते हैं कि आपको रिसर्च के प्रोसेस की नॉलेज है या नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, कल को जो आपका सुपरवाइजर होगा, आप सपोज करो रिसर्च करना चाहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे, आपका सुपरवाइजर बोलेगा नहीं इस पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, इस पर नहीं, कुछ नई चीज़ें उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आपको अकॉर्डिंगली अपना जो है हो सकता है रिसर्च एरिया चेंज करना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि यदि आप किसी चीज़ पे रिसर्च प्रपोजल लेके जा रहे हैं तो आपको उसी पे रिसर्च करनी पड़ेगी, आपका रिसर्च एरिया जो चेंज हो जाता है। तो इस लेवल पे सिंपल रखिए, जितना आपको समझ में आता है उतना रखिए। इंटरव्यू पे जाए तो बी कॉन्फिडेंट, उनकी आंखों में आके डाल के बात कीजिए, और आर्ग्यू नहीं करना है। जैसे क्या होता है कि उन्होंने एग्जामिन सामने जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने आपसे कुछ पूछा और आप आर्ग्यू करना, जहाँ आपने आर्ग्यू करना शुरू किया कहानी ख़त्म आपकी वहीं पे। तो यदि आप श्योर ना हो तो प्लीज़ उस पर बहस ना कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि आप डिफेंड कर सकते हैं तो वहाँ पे ठीक है, लेकिन डिफेंड वो भी पोलाइटली करना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो ये था पूरा डिटेल में इन्होंने कैसे आपको तैयारी करनी है और क्या क्या चीज़ें, और यहाँ पे एमफिल के बारे में जो बता रहे थे सिनॉप्सिस किस तरह से, उसको भी पूरी तरह से डिटेल में इन्होंने बताया। मुझे लगता है कि इतना इस एग्ज़ाम के लिए बहुत काफ़ी होगा। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए, आप कमेंट में दे सकते हैं, हम उसकी कोशिश करेंगे कि हम लोग मिलकर उसका रिप्लाई कर सकें। इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, आप हमारे चैनल पे। थैंक यू। आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने देखा। और जो भी ज़रूरत होगी आप पूछ सकते हैं इनसे, हम हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू।